Hello students, today we will study models, and in the previous videos I have explained some of the models, and today it is going to be the last video, and in this I will explain marginal auxiliary verbs. So let's begin. Our next model is ought to. So why it is used? It is used to express duty or moral obligations. So हमें ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए या कुछ मोरल ऑब्लिगेशन जो हमारे नैतिक दायित्व या कर्तव्य होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए वी कैन यूज़ ought to. For example, we ought to obey our parents. So it is our duty, it is our moral obligation that we ought to obey our parents. So here we have used model ought to. The next is we ought to protect our national monuments. So it is also our duty to protect national monuments. So यहाँ पे हम अपनी duty या moral obligations को express कर रहे हैं. So we have used ought to here. Next is to express advice. So when we want to give advice to someone, then we can use ought to model. And for example, students ought to get up early in the morning. So it is also a kind of advice. You ought to read the Gita. So here also someone is giving an advice to the listener. So for expressing advice, we can use ought to. And in the previous videos, I told you that for expressing advice, we can use should. So we can use should and ought to both to express advice. So what is the difference? So here I can tell you that when we use should, okay, when we use should for expressing advice, so here the advice one can choose to follow or ignore it. अगर should का use हम करते हैं, so we are telling that yes, what is good or what is not good for you, for the listener. हम लिसनर को ये बता रहे होते हैं कि यस उसको ये करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है, या फिर ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है. बट इट इज़ अप टू द लिसनर. वो लिसनर पे डिपेंड करता है कि ही इज़ गोइंग टू चूज़ इट और ही इज़ गोइंग टू इग्नोर इट. ओके, वो उस एडवाइस को फॉलो कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, दैट इज़ अप टू हिम. एंड when we use ought to, so it is a stronger word in comparison to should. जब हम ought to का यूज़ करते हैं तो थोड़ा एम्फेसिस यहाँ पे हम करते हैं, ज़्यादा ज़ोर दे के हम एडवाइस को देते हैं. एंड हियर एडवाइस हैज़ टू बी फॉलोड, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस देता है ought to. एंड समटाइम्स बोथ should and ought to can be used interchangeably. But when we talk about rules, laws, okay, or regulations, then we should prefer to ought to. हमें ought to का use करना चाहिए because ought to is stronger. Okay, it gives more emphasis. So that is the difference between should and ought to. should में लिसनर पे डिपेंड करता है कि उसको फॉलो करो या इग्नोर करे, एंड ought to क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, एंड दैट टाइम एडवाइस हैज़ टू बी फॉलोड. ओके, so these are the functions of ought to. Now let's start marginal auxiliary verbs. In the very beginning I had told you that auxiliary verbs can be divided into three parts, that is primary auxiliary verbs, marginal auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. So हमने modal auxiliary verbs जो pure modals होते हैं वो हमने पढ़ लिया है. Now we are going to study marginal auxiliary verbs and they are called semi modals also. इनको semi modal भी कहा जाता है. And they are used to need and dare. And why they are called semi modals or marginal auxiliary verbs? Because they have the characteristics of both auxiliary verbs as well as modals. दोनों की characteristics होती हैं. वो मॉडल की तरह भी इनका यूज़ किया जा सकता है, एंड दे कैन बी यूज एज हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. एंड हाउ इट इज़, सो लेट्स सी हाउ दे वर्क. The first one is need, and why it is used? It is used to denote necessity. ज़रूरत को denote करने के लिए. need का मतलब होता है ज़रूरत, और ज़रूरत या आवश्यकता को denote करने के लिए we use the model need. For example, he needs my help. It means that उसे मेरी ज़रूरत, मेरी मदद की ज़रूरत है. They need to do their work means उन्हें अपना काम करने की ज़रूरत है. एंड ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है. एंड हियर यू कैन सी दैट एज
in the previous video I had told that models, they don't change their form according to the number and person of the subject. Okay, like can cannot be used like cans. Okay, it cannot be canned, and may cannot be maze or made. सो मीन्स दैट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कैन में एस या एस ऐड नहीं कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वी कैन नॉट ऐड एस टू मे, it cannot be maze. Okay, but here you can notice that with singular subject we have used singular form of verb. Need, subject is singular, so need में हमने s ऐड किया है and we have changed into, we have made it singular. And then the next sentence is they need, so here they is a plural subject and we have used need, that is plural form of verb. Okay, in the next sentence he needs, again he is a singular verb and we have used as to we have used singular form of verb, he needs to go there. Okay, so with the, we can see that with the subject, with the number of the subject, the form of singular and plural form of need is getting changed. So that's why आई टोल्ड यू दे आर कॉल्ड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. के अंदर मॉडल की भी खासियत होती है और ये बाकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनकी तरह यूज़ किए जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. नीड का बस एक ही फंक्शन होता है कि इसको नेसेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ हाउ टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव. ओके, सो अगर हमें नीड से सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, नीड वाले सेंटेंस को, सो वी हैव टू वेज, हम दो तरीके से बना सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे डोंट नीड टू डू देयर वर्क. हियर वी हैव यूज्ड डू एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड नीड यहाँ पे क्या है, नीड इज प्लेइंग द रोल ऑफ मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है. ओके, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड टू विथ द नेक्स्ट वर्ब डू. डू के साथ हमने टू का यूज़ किया है. सो व्हेन नीड प्लेज द रोल ऑफ मेन वर्ब, उसके साथ आने वाली वर्ब के साथ हम टू का यूज़ ज़रूर करते हैं, इट इज़ मस्ट. ओके, सो माइंड इट. एंड we have used do, or we can use does also with the singular number. We can use did also when we talk about past. They didn't need to do their work. Okay, like this. And in the next example you can see that we have used need as a helping verb because we have used need before not से पहले हमने need का यूज़ किया. they need not do their work. यहाँ पे need क्या है, need is playing the role of help model. Okay, helping verb or model auxiliary verbs. And after that subject we have used they, then after helping verb or model auxiliary verb, that is need, and then after not का हमने यूज़ किया, and then we have used main verb do. And here we didn't use infinitive to, हमने to का यूज़ यहाँ पे नहीं किया है. क्यों? क्योंकि नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है. ओके, एंड डू यहाँ पे मेन वर्ब है, सो वी डोंट नीड टू यूज़ टू हियर, infinitive here. So in these ways we can use need and we can change the sentences into negative. So what are the points that we need to keep in our mind, that when we use other helping verbs like do, did or does in the sentence, so what are the points that we should keep in our mind while using need? So when we use need as main verb, then we use do, does or did as helping verb, and need के साथ आने वाली जो next verb होगी उसके साथ हम to का यूज़ करते हैं, infinitive का यूज़ करते हैं, as we have used here to with main with the next verb do. and अगर need हम as a model यूज़ कर रहे हैं, as an auxiliary verb यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ये एस ऐड नहीं करेंगे. ओके, अगर यहाँ पे शी होता देन ऑल्सो यहाँ पे शी नीड नॉट डू हर वर्क होता. ओके, यहाँ पे एस ऐड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे नीड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड उसके साथ आने वाला जो नेक्स्ट वर्ब है डू, उसके साथ हम टू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नीड इज़ हेल्पिंग वर्ब हियर एंड डू इज़ द मेन वर्ब. यहाँ कोई एक्स्ट्रा मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया, सो दैट्स वाई वी वोंट यूज़ टू हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ interrogative sentences. How to frame interrogative sentences having need in the sentence. So again there are two ways, हम दो तरीके से बना सकते हैं. need को as a main verb
यूज़ करके एंड नीड को एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल के रूप में यूज़ करके, लाइक डू दे नीड टू डू देयर वर्क, हियर वी हैव यूज डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ किया है एंड नीड इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ मेन वर्ब हियर, और उसके साथ आने वाले जो वर्ब हैं डू, उसके साथ हमने टू का यूज़ किया है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस नीड दे डू देयर वर्क, here we have used need as a helping verb, as an auxiliary verb. Okay, so need they do their work, so हम interrogative sentences या yes no sentences में क्या करते हैं, first of all we use a helping verb, so we have used here need, then after subject that is they, main verb do and then object, so need they do their work, and need का यूज़ हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब किया है, तो डू के साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आया, इसको हमने इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ नहीं किया, टू का यूज़ नहीं किया गया है। ओके, एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज टू विद डू, क्योंकि नीड यहाँ पे मेन वर्ब है और डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सो दैट इज़ द and that these are the two ways to frame interrogative sentences. Now let's see the next model, marginal auxiliary verb or semi model. So the next is dare, where we use dare where the implication is to be bold or courageous enough, हिम्मत होना, courageous होना, bold होना, इस सेंस में हम dare का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he dares to go there means उसे वहाँ जाने की हिम्मत है, वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मैं अपने फादर को अपोज करने की हिम्मत करता हूँ। सो हियर वी हैव यूज्ड डेयर टू शो बोल्डनेस और courageousness. Okay, so here also we can notice that with the singular subject we have used s to the modal verb dare. Okay, and with the plural subject I we have used the plural form of verb dare. Okay, so it also changes according to the number of the subject. He dares to go there, and dare के बाद जो आने वाली verb है we have used infinitive form, टू का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे डेयर क्या कर रहा है, एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है। सो वी हैव यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ डेयर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, और उसके बाद आने वाले वर्ब को हमने इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ किया है। नाउ लेट्स सी द निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए अगेन वी हैव टू वेज, डू डज या डिड का यूज़ करें एज अ हेल्पिंग वर्ब, या फिर डेयर को ही हम एज अ हेल्पिंग वर्ब एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। लाइक ही डजंट डेयर टू गो देयर, हियर वी हैव यूज्ड डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन डेयर एज अ मेन वर्ब, और उसके बाद आने वाली वर्ब जो है गो, उसके साथ हमने यूज़ किया है टू। In the next sentence we have used dare as a model, as an auxiliary verb. So he dare, subject he, then after helping verb dare, and then not, and then go is main verb here. So go यहाँ पे main verb है and dare is a helping verb, auxiliary verb. So dare एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाने की वजह से हमने गो के साथ टू का यूज़ नहीं किया है। ओके, हमने गो को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया विदाउट इन्फिनिटिव फॉर्म। So in these ways we can use negatives and we can frame negative sentences. Interrogative sentences बनाने के भी we have two ways, does को यूज़ करें, do does, और did का यूज़ करें, या फिर dare को एज अ मॉडल एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाए। लाइक डज ही डेयर टू गो देयर, हियर डज का यूज़ किया गया एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड डेयर हैज़ बीन यूज्ड एज अ मेन वर्ब हियर, और इसके साथ जो गो वर्ब आया है नेक्स्ट वर्ब वी हैव यूज्ड टू, infinitive form. Okay, and in the next example dare he go there, here dare has been used as a helping verb, auxiliary verb, and then after subject, then after go as a main verb। यहाँ पे main verb हमारी go है ना कि dare, dare is an auxiliary verb here, so that's why go की बेस फॉर्म को यूज़ किया गया है ना कि इन्फिनिटिव फॉर्म को। ओके, सो इस तरीके से हम नेगेटिव एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द लास्ट मॉडल, दैट इज़ यूज्ड टू। यूज्ड टू, एंड वी यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। ओके, हम पास्ट की हैबिट्स को या पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। एंड दोज हैबिट्स और दोज एक्शंस विच आर डिसकॉन्टिन्यूड नाउ, उन सारी पास्ट हैबिट्स या पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूज टू। जो एक्शंस या हैबिट्स अब डिसकॉन्टिन्यूड हो चुकी है, मीन्स अभी प्रेजेंट में उन्हें उन एक्शंस को नहीं किया जा रहा है या उन हैबिट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। सो एग्जाम्पल इज़
ही यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, सो इट वॉज हिज हैबिट, पास्ट हैबिट, कि वो मॉर्निंग में क्या किया करता था, वॉक किया करता था. शी यूज़ टू लर्न योगा. इट इज़ ऑल्सो showing the past habit of the subject. I used to smoke cigarette, now I have left. So here the sentence is showing the past habit of the speaker, like he used to smoke cigarette and now I have left. It shows that the action has been discontinued. इसको discontinued कर दिया गया है और ये अब एक्शन कंटिन्यू नहीं है. आई यूज़ टू गो स्विमिंग एवरी थर्सडे व्हेन आई वाज एट स्कूल. So this also shows that when the speaker was at school in the past, वो क्या करता था, स्विमिंग किया करता था हर थर्सडे को. बट एट प्रेजेंट अब इस एक्शंस को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है. सो फॉर एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट्स, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट्स, वी कैन यूज टू. नाउ लेट्स सी द निगेटिव सेंटेंसेस. इसको भी बनाने के दो तरीके हैं. फर्स्ट इज ही यूज्ड नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग. यूज्ड को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, लाइक हियर ही सब्जेक्ट, यूज्ड को हमने एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है. बट माइंडेड की नॉट का यूज़, वी प्लेस नॉट इन बिटवीन यूज्ड एंड टू, दोनों के बीच में यूज़ करेंगे. ही यूज्ड नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग. And in the next sentence, he did not used to walk in the morning. So as it shows the past habit, तो हमने did का use किया है, did as a helping verb, and used to is playing the role of main verb. but minded जब हम did का use करेंगे तो used to की first form का use करेंगे, that is used to. ओके, USED का यूज़ हम नहीं करेंगे. सो ही डिड नॉट यूज़ टू वर्क इन द मॉर्निंग. तो ये दो तरीक़ों से हम सेंटेंस को निगेटिव फ्रेम कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगेन वी हैव टू वेज. हम यूज़ टू को एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करें और एज अ मेन वर्ब. सो फर्स्ट वन इज़ यूज्ड ही टू वॉक इन द मॉर्निंग. हियर यूज्ड का यूज़ हमने कैसे किया है, as an auxiliary verb. So that's why we have placed used first of all in the beginning of the sentence, used he. Then after हम subject के बाद to का use करेंगे, used he to walk in the morning, और with the help of did also. did यहाँ helping verb का रोल प्ले करेगा and used to as a main verb. So did का हमने यूज़ किया है, did he used to walk in the morning. So यहाँ पे क्या है, did helping verb है एंड यूज़ टू मेन वर्ब है. बट डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं मेन वर्ब की. सो हियर वी हैव यूज टू, USE, ओके, नॉट USED. सेकेंड फॉर्म का हम यूज़ नहीं करेंगे. सो इन दीज वेज वी कैन चेंज द सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव. And one important point that we have told you that for expressing past habits we can use would also. would का use हम भी कर सकते हैं past habits को express करने के लिए. then what is the difference between would and used to? So used to का use हम तब करते हैं when we talk about actions or situations that continued for some time in the past and now फिनिश्ड. ओके, अब वो फिनिश्ड हो चुकी हैं, अब उन एक्शंस को या उन हैबिट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है. ओके, इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंड सडनली. कोई कुछ अचानक से हुआ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ नहीं करते हैं. वी यूज़ टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस और सिचुएशंस विच कॉन्टीन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट. कुछ दिनों तक कॉन्टीन्यू रहती हैं वो पास्ट में. वेयर एज वुड का यूज़ हम कब करते हैं, वी यूज़ वुड टू डिस्क्राइब दोज एक्शंस विच वी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द पास्ट, जो काफ़ी टाइम रिपीट की जाती हैं. ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली वो नहीं होती हैं. कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पास्ट में हम काफ़ी टाइम रिपीट करते हैं, वी रिपीटेड मेनी टाइम्स. सो फॉर एक्सप्रेसिंग दोज हैबिट्स, दोज एक्शंस, वी यूज़ वुड. जबकि यूज़ टू का यूज़ हम उसलिए करते हैं जब हम किसी एक्शंस को या हैबिट्स को काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हम कॉन्टीन्यूड रखते हैं. एनी एक्शन दैट कॉन्टीन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम in the past or a situation that continued for a period of time in the past. So now with this we have come to an end, and I have explained both the models, means pure models and marginal models, semi models, both. I hope you would have understood. So let's meet in the next video.